جو مثل خول و خنسا جیے اسلام کی خاطر، سوا رب کے نہ ڈرتی ہو وہ بیٹی اچھی لگتی ہے، جو پابندے عبادت۔ آپ یہاں اٹھنے سے پہلے اگر عہد یہ کر لیں کہ مجھے کامیاب انسان بننا ہے، دنیا اور آخرت دونوں کا، دنیا میں پاگل بن کے نہیں گھومنا ہے، دنیا میں کامیاب، اور اگر ہم چاہتے ہیں تو سننا چاہتے ہیں کہ ان کی خصوصیات کیا ہے، کوالٹیز کیا ہے، کیا چاہتے ہیں؟ ہاں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بدل لیں، آپ اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں، تو میں آپ کو 8 خصوصیات میں بولنے والی ہوں، اس کے اندر آج بتاؤں گی میں۔ یقین مانیے اس سے ہمارا رب آسانی سے راضی ہو جائیں گے، ہمارے رب کو بہت آسانی ہوگا راضی کرنے کے لیے۔ 8 چیز۔ سب سے پہلی چیز، اپنے گول کو سیٹ کریے، اپنے ٹارگٹ کو سیٹ کریے کہ میرے پاس 2022 ہے تو اس کے اندر ہم کو کرنا کیا ہے، اس کے اندر ہم کو کرنا کیا ہے۔ خالی یوں ہی وقت گزار دینا، یا مجھے قرآن کو حفظ کرنا ہے، یا مجھے عربی لینگویج سیکھنا ہے، یا مجھے سورہ ملک یاد کرنا ہے، یا مجھے اپنی اچھی عادتوں کو بڑھانا ہے، یا میرے سجدوں کو میرے رب کے سامنے بڑھانا ہے۔ مجھے کرنا ہے کیا ہے؟ گھر بنانا ہے، شادی کرنا ہے، کیا کرنا؟ وہ تو پہلے گول تو بناؤ۔ اگر آپ نے جو گول بنا رہے ہیں، جو ٹارگٹ بنا رہے ہیں، کرنا کیا ہے اس کو لکھ لو، گھر میں جا کے ایک ڈائری بناؤ کہ مجھے 2022 تک کرنا کیا ہے، 2022 میں کرنا کیا ہے 2023 آنے سے پہلے، تاکہ ہماری سوچ، ہمارے فکر، ہماری توجہ ہمارے ٹارگٹ کی طرف رہے، ہمارے گول کی طرف ہو، ہم کو کرنا کیا ہے۔ آپ یہ ایک ملٹری کو لے لیجئے، جو بارڈر پہ سولجر رہتے ہیں ہمارے، اگر ان کے پاس ٹارگٹ نہیں رہتے تو پھر فوجی کرانے کے قابل نہیں رہتے، وہ ہے نا، سولجر کرانے کے قابل نہیں رہتے۔ جو بارڈر جو رہتی ہے چوکنا رہتی ہے، چاہے دن ہو چاہے رات ہو، چاہے بارش ہو چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو، ان کی سوچ، ان کی فکر بارڈر کی طرف رہتی ہے کہ کوئی ہمارے ملک میں داخل نہ ہو جائے، رہے کہ نہیں رہتی؟ ہم کو بھی ہمارے ٹارگٹ پہ نظر دوڑانا ہے، کیونکہ مومن بھولا اور بھٹکا نہیں رہتا ہے، وہ جال میں نہیں چلا جاتا ہے، وہ جو نہیں چاہتا وہ نہیں کرتا، مومن ایسے کامیاب نہیں ہوتے۔ اگر میں آپ کو مثال دوں تو مجھے بتائیے کہ جب ہم بس اسٹینڈ پہ جاتے ہیں نا، جو بھی بس آتا وہی بس میں ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ہماری منزل کہاں وہ پہلے دیکھتے ہیں نا، ہماری منزل کہاں ہے ڈھونڈتے ہیں نا۔ تو پہلے اپنے گول سیٹ کرو، اپنے منزل بناؤ کہ مجھے کرنا کیا ہے، جانا کہاں ہے۔ کامیاب انسان ایک مومن کی پہلی سب سے صفت ہے، لیکن آج کیا ہو گیا معلوم ہے؟ ہمارا گول، ہمارا ٹارگٹ، ہماری منزل طے نہیں ہم نے کی، اسی لیے ہم نے کیا کیا، اکثر ہمارے مسلمان گھر، سوسائٹی، اچھا خاصا علم رکھنے والوں کی میں بات کر رہی ہوں، میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہی جس کو علم نہیں رہتے، میں ان لوگوں کی بات کرتی ہوں جن کو اللہ تھوڑا بہت علم دیا۔ جب بھی ان کو اسلام معلوم ہو جائے، ٹارگٹ معلوم ہو جائے کہ کرنا کیا ہے، اگر ان کو ٹارگٹ معلوم ہی نہیں ہے، دنیا والے لوگوں کے درمیان ان کے جیسا بن جاؤ، کائے کو ڈسٹرب، خالی دین کے باجیوں کے پاس ان کے جیسا بن جاؤ، جہاں جاؤ جیسے لوگ وہاں پہ ویسا بن جاؤ، ہے نا۔ اپن تو تھوڑے الگ ہے بھائی، جہاں جیسے وہاں پہ ویسا رہتے، مومن ویسا نہیں رہتا، منافق ویسا رہتا ہے۔ منافق کی صفت ہے، منافق کے 2 منہ ہوتے، جہاں جیسا رہا وہاں ویسا منہ بنا لیتا ہے۔ منافق کی صفت ہے، ناکام انسان کی صفت ہوتی ہے، مومن کی صفت یہ نہیں ہوتی۔ مومن ہمیشہ ٹارگٹ ہمیشہ سیٹ کرتا ہے، مجھے سچ بولیے، یہ پورا سچ بولنا ہے، مجھے موت تک، اگر میری موت اس سال میں ہے تو میں چاہتی ہوں کہ میری موت اس وقت آئے جس وقت میری زبان سے سچ نکلتا ہو، جھوٹ نہیں۔ ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے، لیکن یہ سال عربی لینگویج سیکھنا ہے، یا میرے اللہ کا قرآن عربی زبان میں قرآن بھیجیں، میں انگلش سیکھ سکتی ہوں، میں دوسری لینگویج سیکھ سکتی ہوں، کیا میں رب کی اپنی زبان نہیں سیکھ سکتی؟ کیا مجھے کرنا کیا ہے؟ ہم دنیاوی اعتبار سے گول سیٹ کرتے ہیں نا، نہیں مجھے آج یہ گھر بنا دینا ہے، یہ سارا شادی کر دینا ہمارے بچے کی، آخرت کے لیے کیا ٹارگٹ ہے اماں، کیا گول ہے بتائیے، کیا ٹارگٹ ہے، کیا گول ہے؟ گول کو سیٹ کرے کامیاب انسان کیا کرتا ہے؟ گول سیٹ کرتا ہے، اپنی منزل کو طے کرتا ہے، پہلے منزل لکھتا ہے، اس کے بعد اس کو کرنا کیا وہ کرتا ہے۔
ये पहली चीज। दूसरी खुसूसियात, बड़ी अहम चीज मैं आपको बता रही हूँ। दूसरी चीज, मोमिन के पास बहानों की बीमारी नहीं रहती। कामयाब इंसान के पास बहानों की कोई बीमारी नहीं थी। वो एक्सक्यूजेस का मरीज नहीं होता। कौन बोलो? मोमिन कामयाब इंसान जो दुनिया और आखिरत में दोनों होते हैं। आज हम अगर कोई गोल सेट भी कर लें, नहीं मुझे झूठ नहीं बोलना है, मुझे नमाजें पढ़ना चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे हर रोज कुरान पढ़ना चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम पूछेंगे कि आप नमाजें पढ़ रही है कंटिन्यू, या कुरान पढ़ रही है कंटिन्यू, रोज पढ़ रही है? क्या बोलते हैं? नहीं जी, आज शुरू तो करी थी, लेकिन घर में क्या है, हमारे रिश्तेदार आ गए, इसके वास्ते मैं कुरान नहीं पढ़ी, नमाज छोड़ दी। मोमिन बहानों का मरीज नहीं होता, एक्सक्यूजेस की बीमारी उसके पास नहीं रहती। बल्कि मोमिन कैसा होता है, अगर उसके पास उसके गोल के लिए, उसके मकसद के लिए, उसके मंजिल के लिए उसके हालात मुश्किल हो जाए, वो उस हालात में से अपना रास्ता निकालता है। तरक्कियों के दौर में उसी का जोर चल गया जो बना के रास्ता भीड़ से निकल गया। कामयाब तो वही लोग होते हैं। रिश्तेदार घर में आए, कोई बात नहीं, रिश्तेदार को लेके बैठ जाएगी अगर उसका गोल सेट है तो। रिश्तेदार आए, नमाज का टाइम है, कोई बात नहीं, फिर रिश्तेदार को लेके नमाज के लिए बैठ जाएगी, लेकिन बहाने नहीं बनाएगी। और ना ही अपने जो मकसद तय किया है कि मुझे कुरान सीखना है, उसका तर्जुमा सीखना है, उसकी तफसीर सीखना है, उसमें अगर हमको कोई ऐसी बात कर दे तो हम क्या बोलते हैं? नहीं, उन्हें हमको बहुत जोरों से बातें कर दिए थे, मेरा प्रेशर ब्लड का हाई हो गया, इसीलिए मैं आज नहीं पढ़ी। नहीं, कामयाब इंसान अपनी कोताहियों का बोझ दूसरों पर नहीं डालता, दूसरों को ब्लेम नहीं डालता। एक मोमिन खुद जिम्मेदार होता है, हर चीज का, गलती का भी खुद जिम्मेदार होता है, हर चीज का, हर कामयाब का खुद जिम्मेदार होता है एक मोमिन। और अगर उससे गलती हो भी जाए एक कामयाब इंसान से, एक मोमिन से, तो वो उस गलती से सीखता है, अपने ईमान को बढ़ा लेता है, अपने आप को और बेहतर कर लेता है, ना कि लोगों के ऊपर थोपते हुए चल जाता है। मेरी बहनों, उठाइए जंग ओहद का वाकया। जंग ओहद में क्या हुआ था? बोलिए क्या हुआ? बोलिए, जंग ओहद क्या है? बोलिए। ये कैसा सवाल करे, हमारा यही तरीका है कि जो हमसे जो लोग दिन का इल्म हासिल करें वो मजबूती के साथ हासिल करें, अपनी जिंदगियों में एक चेंज लाने के साथ हासिल करें, अपने रब को राजी करने वाले बने, ना कि दखल और खराजा का करे, अपने सुन के वो निकाल दे। इसीलिए हम बार बार ऑडियंस से सवाल करते हैं। जंग ओहद इस्लाम का एक अजीम मौका है, एक अजीम जंग है, एक अजीम बहुत बड़ी जंग थी। ये हुआ क्या था? इस जंग में कामयाब इंसान कैसे था, अपनी गलतियों से कैसे सीखता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को लिए और सब बंदी कर रहे थे, लोगों को कह रहे थे लोग कौन कहाँ ठहरेगा, क्योंकि जंग किसके दरमियान थी? मुसलमान और मुशरिक के दरमियान थी, मुशरिक के दरमियान थी, मक्का के बीच में थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? फला टीले पे, फला पहाड़ पे तुम लोग चल जाना और वहां से बिल्कुल मत हिलना, चाहे परिंदे तुम्हारे जिस्म का गोश्त क्यों ना नोच ले, तुम वहां से नहीं हटना। कौन बोले? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को बोले। जंग शुरू हो गई। जैसे जंग शुरू हो गई, मुसलमानों ने बड़े जोर के साथ लड़ाई की, बड़े जोरों के साथ लड़ाई, बड़ा बेहतरीन लड़ाई की, इतनी बेहतरीन की मुशरिके मक्का वहां से भागने लगे, वहां से वापस भागने लगे। अब मुसलमानों ने क्या किया? वो जो लोग भाग रहे थे उनका जो मानी गनीमत था वो इकट्ठा कर लिया। और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पिलर के पास पहाड़ से नहीं हटना ना, वहां के कुछ सहाबा ने क्या किया? जंग तो खत्म हो गई, मुशरिके मक्का भाग रहे हैं, माले गनीमत हम भी जमा कर रहे हैं, तो कुछ सहाबा ने रोका भी कि नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ से हुक्म नहीं हटे। यहाँ उनकी सोच थी कि चलो माले गनीमत जमा करते। वहां से कुछ सहाबा नीचे उतर गए, सिर्फ 14 सहाबा वहां पे उस टीले के ऊपर बाकी रहे। हुआ क्या? जैसे ही सहाबा नीचे उतरे, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु उनके नॉन बिलीवर थे,
काफिर थे उस वक्त जंग औद के मौके पे, क्योंकि खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु पहले काफिर थे, बहुत खतरनाक थे। पहले जिस जंग में जाते कभी नहीं थे खालिद बिन रजी अल्लाह अन्हु, जैसे मुसलमान आधे नीचे उतर गए, फौरी तुरंत हमला कर दिया। उस वक्त जो 14 सहाबा था ने तुरंत हमला कर दिया और जीती हुई जंग में मुसलमान हार गए। 70 से ज्यादा सहाबा खत्म हो गए। हमजा रजी अल्लाह अन्हु का कत्ल कर दिया गया, उन्होंने शहीद हो गए। मुशैब बिन उमैर रजी अल्लाह अन्हु शहीद हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहीद होने की अफवाह फैल गई। अल्लाह के जो गंदाने मुबारक दास शहीद हो, कितना बड़ा नुकसान हुआ ना। लेकिन जब नुकसान हुआ ना मेरी बहनों, तो सहाबा ने अपना ब्लेम दूसरों पे नहीं डाला। ये नहीं बोले कि लोग भाग रहे थे माले गलीमत की इसलिए मैं भाग रहा, नहीं नबी अल्लाह नहीं सहाबा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ब्लेम किया, ना उन्होंने उनको ब्लेम किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको भी ब्लेम नहीं किया, बल्कि कुरान में अल्लाह ताला ने आयतें नाजिल कर दी, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह का फर्ज है कि आप नर्म जात बनाया, सख्त नहीं, आप इनको माफ कर दीजिए। ये अल्लाह ताला का गार्डियन कर रहा है, अल्लाह ताला गार्डियन कर रहे हैं, आप इनको माफ कर दो, आप इनके लिए अल्लाह से तौबा करो, बख्शिश इनके लिए तलब करो। इनकी नियत यकीनन आपकी नाफरमानी करना नहीं था। जैसे सहाबा ने ये आयतें सुनी जो गलती कर चुके थे। देखिए कामयाब इंसान कैसा होता है, एक मोमिन कैसा होता है। गलती कर दी, इतना बड़ा नुकसान हुआ, इतना बड़ा, 70 से ज्यादा सहाबा, ना मामूली बात। 70 से ज्यादा चाहते थे सहाबा एक दूसरे को ब्लेम कर सकते थे, बोल सकते थे, उन्होंने ऐसे किए तो हम भी वैसे किए। सहाबा ने क्या किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नाफरमानी हुई अपने इताअत को बढ़ा दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिर कभी नाफरमानी नहीं की, अपने ईमान को और बढ़ा दिया, सीखा अपनी गलतियों से। एक कामयाब इंसान अपनी गलतियों से सीखता है ताकि दोबारा उससे गलती ना हो। थॉमस एडिसन का नाम सुना है आपने? कौन है थॉमस एडिसन? स्कूल में पढ़े थे, हमको क्या मालूम। अब ये साइंटिस्ट है जो बल्ब बनाया, आप जानते हो उसके बारे में? कितनी बार वो नाकाम रहा बल्ब बनाने में? 99% वो फेल रहा, मतलब 99 मरतबा फेल हो गया, लेकिन 100 मरतबा जब 100 पोस्ट हुआ था तो वहां पे वो कामयाब हुआ बल्ब बनाने में। जानते हो क्या कहा कि मैंने 99 मतलब फेल नहीं हुआ, मैं 99 मरतबा कि मैं ये सीखा कि इससे बल्ब नहीं बनता। कामयाब इंसान की सोच ये होती है, कामयाब इंसान अपने गलतियों से सीखता है, गलतियों से। ये दूसरी खसूसियत थी। पहली क्या थी बोलिए? भूल गए। तय करना कि क्या करना, हमको करना क्या है, मंजिल लिखना, मंजिल मुझे करना क्या है। दूसरी चीज बहानों की दुकान नहीं बनाना अपनी जिंदगी में। दूसरी चीज क्या करना है बोलिए? बहाना नहीं करना है। बहानों की बीमारी अपने रग में नहीं रखना, निकाल के फेंक देना उसको। अगर हमसे कोई गलती हो भी जाए, कमी भी हो जाए, तो क्या करें, बार बार कर लेते हैं, नहीं करते। क्या करते? उन गलतियों से सीख के लोगों को ब्लेम नहीं करना, उन्होंने बोले की वजह से वैसे हुआ, इन करने की वजह से ऐसा हुआ। हम क्या करें, 10 फाइनल, हम क्या करें? ठीक है, ये दूसरी चीज। तीसरी चीज क्या है? कामयाब इंसान के, एक मोमिन के क्या होता है? सेल्फ होती है, नज्म और ज़ब्त होता है। सेल्फ डिसिप्लिन किसको बोलते हैं? डिसिप्लिन, डूइंग द राइट थिंग एंड राइट वे एंड राइट टाइम, मतलब सही काम करने के बाद सही वक्त पर सही जगह पर, चाहे आपको पसंद आए या नहीं आए, इसको बोलते हैं डिसिप्लिन, नज्म और ज़ब्त। मोमिन अपने जिंदगियों में नज्म और ज़ब्त रखता है। सुबह उसकी होती है तो उसको शाम तक करना क्या है, वो देखता है कि उसको सुबह से शाम तक पढ़ना है, लिखना है, कितना पढ़ना है, कितना लिखना है, लोगों से कितना बात करना, फोन पे कितना बात करना है, उसके पास जाना है, किसके पास नहीं जाना है, उसका पूरा सारे दिन का शेड्यूल फिक्स होता। एक मोमिन, एक कामयाब इंसान का उठे की छुट्टी लेके नहीं चल जाते, जो दिल बोल जाते वो नहीं कर देते। कामयाब इंसान गोल सेट होता है, गोल जो सुबह से शाम तक करना क्या है, उसको उसका डिसिप्लिन फिक्स होता है। किससे कैसी बात करना है, छोटे से कैसी बात करना है, बड़ों से कैसी बात करना है, हम उम्र हमारे सेम एज के लोगों से कैसे बात करना है,
कैसे रखने हैं सबको, कैसे मौक़ों पे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ये मोमिन के पास होता है। नहीं हम गुस्से में थे तो ऐसे बोल दिए, नहीं मोमिन ऐसा नहीं होता, कामयाब इंसान ऐसा नहीं होता। उन्होंने हमारे साथ ऐसे कर दिए तो हम भी वैसे कर दिए, हम तो बोले तो क्या हो रहा, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाहू अकबर। आप मोमिन बनना चाहती है ना, आप कामयाब इंसान बनना चाहती है ना। कामयाब इंसान कभी भी अपने आप को नहीं छोड़ता, अपने गोल को नहीं छोड़ता, है ना। हम मोमिन बनना चाहते हैं ना, है ना। हाँ तो हम कभी कामयाबी को नहीं छोड़ना चाहेंगे, जिससे हमारा टारगेट है। किससे कैसे बात करना है, छोटों से कैसे बात करना है, हम उम्र के एज से कैसे बात करना है, इखलाक कैसे हमको रखना है, कैसे मौके पर क्या बोलना है, ये लोगों के पास सेल्फ डिफेंस होता है। ये नहीं हम गुस्से में थे इसलिए हम बोल दिए ना, नहीं मोमिन ऐसा नहीं होता, कामयाब इंसान ऐसा नहीं होता। उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया इसलिए हम भी बदले में ऐसे कर दिए, तो हम क्या हो रहा, तो नहीं हमको बदले में ऐसे नहीं बोलना है। आप मोमिन बनना चाहते हो ना, कामयाब इंसान बनना चाहते हो ना, तो अपने कोई भी मोमिन कोई भी ऐसा काम नहीं करता, कोई भी ऐसा काम नहीं करता। हम मोमिन बनना चाहते हैं ना सब, हाँ तो हम कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारा ताल्लुक नहीं हो। बेटी के ससुराल में सास क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है वो तक हमारे घरों में सब देखा जाता है। क्या कर रही है जी तुम्हारी सास, ऐसा करे, सुबह से शाम तक लेके ऐसा करे वैसा करे, ये सब सारा चीज होता है ना, होता है ना, ऐसे ही होता है। नहीं देवरानी और ये जेठानी या उनके मैके में क्या हो रहा है या उनकी भाभी क्या कर रही है, ये होता है ना खबर, ये खबर लेते हैं ना सब। मोमिन ऐसी चीजों से अपना ताल्लुक नहीं रखते हैं, मोमिन ऐसी चीजों से अपना ताल्लुक नहीं रखते। मैं बार बार समझाती हूँ, बार बार बोलती हूँ कि मैं उससे अपने मसले को हल नहीं कर सकती, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना जिससे हमारा ताल्लुक नहीं है, मोमिन अब ऐसा नहीं रहता। मोमिन बदनज़मी बदनिज़ामी जिनके पास उनके घर में उनके पास ज़िंदगी में नहीं होता, सेट होता उनका गोल कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या होना है क्या नहीं होना है, वो सेट करते हैं अपना टाइम, किताब पढ़ते हैं, किताब पढ़ के जानते हैं समझते हैं, उसके बाद वो उसको काम करते हैं। वो रात में क्या क्या बोले क्या नहीं बोले, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सब सेट रहता है उनका, मोमिन का सब सेट रहता है मोमिन का। मुझको क्या मिल रहा हो उसके अंदर क्या वक्त बर्बाद हो रहा है, आखिरत बर्बाद हो रहा है, झूठ से, गीबत से, चुगली से, इस सब से हम लोग को बचनी चाहिए। तीसरी चीज थी, क्या चीज थी, तीसरी चीज नज़्म ज़ब्त से अपनी जिंदगी में लाना, अपने गोल को सेट करना और अपने 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 मुताबिक अपना जिस शेड्यूल है उसको सेट करना। एक मोमिन वैसा होता है। चौथी चीज टाइम मैनेजमेंट रहना, इनसे बात कर लिए उनसे बात कर लिए, ये कर दिए वो कर दिए, नहीं। एक कामयाब इंसान मोमिन इंसान कभी ऐसा नहीं करता। ये वक्त जिसके अल्लाह ने कसम खाई, ये कोई वक्त मामूली चीज नहीं है मेरी बहनों। हमने देखा हमने सुना वक्त कभी किसको कैसे पलट सकता है हमने जानते हैं ना। मुझको और आपको ही पलट सकता है ये वक्त, मैं और आप को कोई रानी महारानी अल्लाह के ऐसे बंदे नहीं है कि जो अल्लाह को अभी राजी कर चुके। अल्लाह से दुआ है कि हमसे राजी हो जाए, दिल की गहराइयों से अल्लाह से दुआ है कि हमारे रब हमारे हर काम से राजी हो जाए, आमीन। लेकिन हमको करना क्या है, हमें अल्लाह पाक ने जो वक्त की कसम खाए हैं वो करना क्या है, वो आज हमारे वक्त को किधर किधर डाल देते। देखिए एक मामूली सी वीडियो देखने के लिए, कॉमेडी शो देखने के लिए हम लोग घंटों डाल देते हैं, नहीं 2-2 3-3 घंटे वैसे बैठिए उधर 3-3 घंटे। वो हमारे सलफ थे, जानते हैं आप हमारे जो माल और दौलत की हिफाजत करते हैं ना, देखते हैं कहाँ कितना गया, किसके पास गया, कौन कितना खर्च देना है, हम अपने माल और दौलत का हिसाब करते हैं। हमारे सहालफ हमारे सहाबा अपने वक्त का हिसाब करते थे, वक्त की हिफाजत करते थे, और वो आज वो हमारे माल जो ख़त्म होने वाला है वो उसकी हिफाजत करते थे। ये जो वक्त मुझे और आपके लिए इतनी कीमती है, जो एक मरतबा चल गया जो वापस नहीं आता, उसका हमारे पास कोई हिसाब नहीं है। आज हमारे लिए बहुत आसान है किसी के लिए बहुत वक्त देना, फ्री जी आ जाओ
मोमिन कभी फ्री नहीं रहता, नहीं, कभी उसके पास फालतू का वेस्ट का टाइम नहीं रहता। कभी अल्लाह के लिए अपना जायजा लो कि ये हमारे सहाबा, मैंने बोला ना 24 घंटे हमारे 24 घंटे सेम थे, वो 24 घंटे को न्यूट्रलाइज कर रहे थे, वो देख रहे थे कि 24 घंटे में उनको करना क्या क्या है। इसीलिए दोनों के लिए बड़े बड़े कारनामा करके चले गए। इमाम बुखारी कौन है? इमाम बुखारी मालूम है? इमाम बुखारी कौन है? दादा नाना या कौन है? कौन है ये इमाम बुखारी? सहाबी है? नहीं, इमाम बुखारी सहाबी नहीं है। सही बुखारी जो हम देखते हैं नहीं, हाँ, उसके मुसन्निफ है सही बुखारी। उनके कौन है? सही बुखारी को लिखने वाले कितने साल लिखे मालूम है आपको? 16 साल में खाली लिखे, खाली 16 साल में। 16 साल में उन्होंने मेहनत कर ली, इस दुनिया से चले गए। और देखिए आज तक मैं और आप बुखारी पढ़ रहे हैं ना, बुखारी की हदीस। हमारा कोई मसला बेकार बुखारी के नहीं होती। बुखारी एक हदीस की किताब है, सबसे अफजल, सबसे एथेंटिक अगर कोई किताब है तो सही बुखारी की हदीस है। 16 साल मेहनत की, अल्लाह अकबर। कयामत तक लोगों के लिए फायदा देकर चले गए, खुद भी फायदा उठा रहे, अजर कमा रहे, अपनी आखिरत को ही बना ली। सिर्फ 16 साल हमने अपनी भी गवाए है ना, हमने गुजारे 16 साल में क्या किया, हमने क्या किया। अपने मुहासबा करे, अपने आप को चेक करे मेरी बहनों। ये चौथी चीज थी टाइम मैनेजमेंट। अपने वक्त को ये अपने गोल पे सेट करो। ये वक्त बहुत कीमती, अगर आपका वक्त गुजर गया तो कोई उसका वक्त नहीं देने वाला दूसरा, ये बात याद रखो। चौथी चीज, पांचवी चीज मेरी बहनों, एक मोमिन कामयाब इंसान हमेशा इल्म से जुड़ा हुआ था, हमेशा इल्म से जुड़ा हुआ था, सीखता है, हमेशा नई नई चीजें सीखता, हमेशा नई नई चीजें सीखता। लेकिन आज हमारे पास इल्म का क्या मामला है? क्या मामला है बताइए? पढ़ना, लिखना, इल्म हासिल करना और मदरसे को जाना, तफसीर पढ़ना, हदीस पढ़ना, वो सब शादी से पहले कर लेना, है ना, है ना। शादी से पहले जितना पढ़ना है तुमको पढ़ लो, जैसा रिश्ता तय हुआ खत्म, तुम और बच्ची खाना बस दोनों बिजी है कि ना, ऐसा आज। अल्लाह अकबर। वो उम्मते मुस्लिमा कि मैं ये नहीं कर रही हूँ, बावर्ची खाने में नहीं जाना चाहिए, नहीं पकाना चाहिए, वरना मेरे पर आ जाएगा ये एलिगेशन, इन्होंने बावर्ची खाने में नहीं जाना, बच्चियां शुरू कर देंगे। जो सोच बन चुकी है वो मैं बता रही हूँ। रिश्ता तय हो गया ना, खत्म हो गया, जो बावर्ची जाए सीखो, वो ही तुम्हारी जिंदगी है। नहीं, अल्लाह अकबर, नहीं। उम्मते मुस्लिमा के लिए सबसे पहली चीज कुरान की आयत दी गई, क्या है? इकरा, पढ़ो, इल्म सीखो। पहली आयत अल्लाह ने तौहीद, पहली आयत रोजा, नमाज, ज़कात, ये सब नाजिल नहीं किए। पढ़ो, इल्म हासिल करो, पढ़ो, इल्म हासिल करो। अल्लाह अकबर। देखो आज हमारा क्या मामला है इल्म का, क्या मसरूफियत है इल्म का, बोलिए क्या है। अगर कोई लड़की इल्म हासिल करना चाहती है शादी के बाद, अगर कोई बोले मुझे इल्म हासिल करना है, मुझे पढ़ना है, पढ़ाना है, दिन का काम करना, तो क्या बोला जाता है? नहीं जी, आज हमारे पास इजाज़त नहीं है, आज नहीं, आज हम ये नहीं कर सकते। यही ना आज है हमारे माहौल माशरे में। हाँ, दुनियावी एतवार से MBBS कर, प्रैक्टिस करो, आप अच्छा प्रैक्टिस करो। हमारी बहू MBBS कर रही है, कभी कोई बोले कि हमारे बीवी आलिमत करने जा रही, कभी सुने? ये होता है। कभी सुने हमारी बहू तफसीर का इल्म हासिल करने जा रही है, कुरान का इल्म हासिल करने जा रही है, कभी सुने? कभी कोई ऐसा तारीफ किया है? कभी भी नहीं। ये जरूर सुनते हमारे भी बहू एलिवल कर रही है, वकील कर रही है, इंजीनियर कर रही है, ये सुनते हैं। अल्लाह अकबर। क्या सोच हो गई आज हमारी इल्म के मामले में, क्या सोच हो गई, गौर करिए। क्या क्या लेवल पे आज आ गए हम लोग, क्या क्या लेवल पे आज आ गए हम लोग। ये इल्म अगर हमारे पास नहीं है, अल्लाह ने जो पहली आयत है इकरा बिस्मिका रब्बी खलक, पढ़ो अपने रब के नाम से। मुझे और आपको सबसे पहले इल्म से जुड़ने के लिए कहा है। दुनिया किसके लिए इल्म, दुनिया में किसके लिए इल्म सबसे आया? MBBS अगर हम ले लीजिए, पूरे बॉडी का जो है ये पूरा कुरान में मौजूद है। अल्लाह कुरान में जो एक माँ के पेट में कैसे बनता है, उसके कैसे कैसे क्या होता है, वो पहले महीने से लेके आखिरी तक 9वें महीना तक 9 मंथ तक अल्लाह पाक ने कुरान में कह दिए। साइंस का इल्म कुरान में मौजूद है।
बारिश कैसे बरसती है, कैसे हमारे बादल जाते हैं, क्या होता है, पूरा प्रोसेस कुरान में है। कैसे सूरज और चांद, सितारे, सन और मून एक दूसरे के लिए गर्दिश करते हैं, कुरान में कह दिए। यह कुरान सिर्फ आखिरत की किताब है, दुनिया और आखिरत की दोनों की किताब है, लेकिन हमने इसको क्या समझा, सवाब का कमाम। सवाब का मतलब चलो शुरू हो जाओ तोता मैना की तरह पढ़ना है ना, खत्म, यही समझ लिया हमने आज कुरान को। इसीलिए आज हमारे घरों में कुरान पढ़ने का निज़ाम नहीं है। इसीलिए आज हमारे घरों में बहुओं को कुरान पढ़ने के लिए दीन का काम करने के लिए आज इजाज़त नहीं दी जाती, इल्म से दूर होने की वजह से, इल्म की कमी होने की वजह से। मेरी बहनों, आज अगर आप इल्म हासिल करना चाहते हैं तो चीन अरब जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले के लोग मिस्र को, इजिप्ट को जाया करते थे, चीन और चाइना को जाया करते। लेकिन आज मुझको और अल्लाह पाक ने इतना बड़ा एहसान किया कि अगर इस एहसान के बदले पूरी जिंदगी सजदा करे ना तो कम है। जानती हो एहसान क्या है? अल्लाह ने इल्म हासिल करने का बेहतरीन जरिया 2022 में सबसे ज्यादा दे दिया। कैसे? ऑनलाइन एजुकेशन, राइट, ऑनलाइन एजुकेशन। हर चीज अब घर बैठे आपको हर चीज मिल जाएगी, हर चीज आपको मिल जाएगी। हमने 2022 में अपने घर का सामान तो जरूर मंगाया होगा, लेकिन बच्चे के डायपर से लेके घर के किराना सामान सब मंगाते हैं ऑनलाइन। लेकिन कभी क्या और एजुकेशन के बारे में कभी सोचा आपने? आज देखिए अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है। इस्लामिक स्टडी पूरी पड़ी हुई है, कई लोग हैं जो आपको पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ने वाले लोग नहीं है। घर बैठे अपने तमाम कामों के साथ साथ कुछ वक्त निकाल के पढ़िए, कुछ वक्त के निकाल के। इतना आसान हो गया हमारे लिए इल्म हासिल करना। आज देखिए, आज हमारा इल्म, फिर भी हम अगर दूर हैं तो फिर हमसे ज्यादा बेवकूफ इंसान कोई नहीं है। 5वीं चीज थी ये इल्म हासिल करना। अपने आप को इल्म से अपने आप को जोड़, अगर अपने आप को इल्म से नहीं जोड़ेंगे, वल्लाह अल्लाह की कसम के मैं कहती हूँ आप सबको, फिर हम हमारे दीन पर कायम नहीं रह सकते। जो अपने दीन पे कायम नहीं रहना चाहता, उसके लिए जरूरी है कि इस इल्म से जुड़े, हर रोज अपने इस्तेमाल से जुड़े, प्रोग्राम से जुड़े, ताकि हमारा ईमान में इजाफा होता रहे। हमारी जो प्रैक्टिस, हमारी जो प्रैक्टिकल जो लाइफ है उसमें इस्लाम नजर आए। अल्लाह के लिए अपने आप को इल्म से जोड़िए। 5वीं चीज थी। 6ठी चीज मेरी बहनों, मोमिन एक कामयाब इंसान अगर किसी चीज का इरादा कर लेता है कि मुझे बस करना, मुझे रब का दीन का काम करना, मुझे तफसीर का इल्म हासिल करना, ये साल चाहे कुछ हो जाए, मुझे अरबी लैंग्वेज इस साल सीखना, चाहे वो अपने इरादों को मजबूत कर लेता है। अल्लाह की तौफीक से होकर गुजरता है इस काम के लिए निकल पड़ता है। हमारे जो सहाबा थे ना, है ना, आप गौर करिए हमारे सहाबा की जिंदगी से हमको क्या मिलता है। वो रिस्क के लिए अपने इरादों को मुकम्मल करने के लिए, लेकिन कभी पीछे नहीं हटे। लेकिन रोमन एम्पायर, रूमियों को जब फतेह कर रहे थे तो सहाबा ने क्या किया, मुसलमानों ने क्या किया, अपना कश्तियां जला दी और उनको क्या बोला कि यहाँ पे जंग जीत के जाएंगे या हम शहीद होके जाएंगे, लेकिन हम वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने इरादा कर लिया कि हम अपने रब के दीन को पहुंचा के रहेंगे। देखिए जीत के कितनी बड़ी जंग थी। वो रूमी एक बड़ी तादाद में थी, आप मुसलमान बहुत कम तादाद में थे, लेकिन फिर भी जीत गए। हमने वो भी वाकया सुना कि सहाबा निकले थे लश्कर ने के इनारिया सामने दरिया आ गया। सहाबा ने सोच लिया कि अब क्या करें हम, क्योंकि हमको रब के दीन को तो पहुंचाना है। क्या किया उन्होंने, बिस्मिल्लाह पढ़ा और दौड़ा दिए घोड़े समुद्र में। रुके, दस्त तो सहरा भी न छोड़ा हमने, पहले जुल्मत में घोड़ा भी दौड़ा दिया हमने। सुना हमने, रुका नहीं। जो इरादा किया, जो अल्लाह पे तवक्कुल किया, अल्लाह पे जो भरोसा किया, जो चल पड़े पूरे इरादे को मुकम्मल करने के लिए। अगर आज हम इरादा करते हैं कि मुझे कुरान का इल्म हासिल करना है, तो अपने इरादे को मुकम्मल करो। चाहे तुमको लोग रोके, तुमको तुम्हारा घर रोके, चाहे तुम्हारे रिश्तेदार रोके, चाहे तुमको तुम्हारे औलाद रोके, जो तुम्हारे बच्चे रोके, लेकिन तुम अगर इरादा कर लो तो तुम उसको पूरा करने के लिए रिस्क लो, थोड़ी मेहनत करो। डूबे हमारे सहाबा, डूबे क्या हमारे दरिया में, जो उन्होंने जो घोड़ा दौड़ा दिए समुद्र में। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने उनकी मदद की। गौर करिए कैसी मदद की, जमीन को ऊपर कर दी अल्लाह ने उनके लिए, अल्लाह ने उनके भरोसे के लिए। आज हमारे लिए भरोसा नहीं हमारे पास,
है। जब इरादा कर लो तो अल्लाह के ज़ात पे भरोसा रखो, इरादा कर लो, उसके लिए जो करना चाहते वो कर गुजरो। ये छठवीं चीज़। सातवीं चीज़, कभी मायूस मत होना, कभी मायूस मत होना। आज मैंने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, हम मेरे पास कल अल्लाह ने दिया ना, कोई बात नहीं, कल मेरा वक्त गुजर गया, लेकिन आज तो मैं पढ़ सकती हूँ। कल मेरे जिस्म में दर्द था, तकलीफ थी, लेकिन आज मैं तो अच्छी हूँ, आज मैं पढ़ सकती हूँ। मोमिन कभी मायूस नहीं करते, कल इसने पढ़े जी, कल उसने नहीं पढ़े जी, जाने दो। नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी मुसीबत, कितनी परेशानियाँ आई है, नहीं आई। अल्लाह अकबर। अपने दीन को हिलाना चाहती हूँ ना, अगर अपने ईमान को जगाना चाहती हूँ ना, तो एक मतलब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़िए। पैदा होते ही बाप इस दुनिया से पैदा होते ही अपने बाप का इंतकाल हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू का इंतकाल हो गया। यतीमी मुसीबत, 6 साल के हुए तो माँ इस दुनिया से चली गई। अल्लाह अकबर। माँ बाप दोनों का साया उनके सर पर से हट गया। फिर 2 साल हुए तो दादा का इंतकाल हो गया। फिर और जब 40 साल के हुए तो इस्लाम का पैगाम लेकर उठे, तो फिर क्या हुआ, लोगों ने बैकआउट किया। 3 साल सेब अबी तालिब। मेरी बहनों, हम अगर ईमान वालियाँ तो एक मरतबा सेब अबी तालिब का वाक़यात पढ़िए। इतने खतरनाक वाक़या है, इतने खतरनाक वाक़या है कि क्या हम आपको बयान करें। अल्लाह अकबर। हमारे सहाबा, हमारी सहाबियाँ, छोटे छोटे बच्चे भूखे प्यासे थे, इतनी बड़ी मुसीबत आए, लेकिन छोटे छोटे बच्चों के आवाज़ों की मक्कों में आवाज़ सुनाई देती थी, रोने की, बिलबिलाने की। कितनी बड़ी मुसीबत आई, लेकिन अल्लाह के नबी क्या छोड़ दिया, दीन पे अमल करना छोड़ दिया, दीन का काम छोड़ दिया? नहीं। सहाबा को जलाया गया, काटा गया, मारा गया, चीर दिया गया, लेकिन अल्लाह अकबर, हम इनसे बढ़ के कोई हमारे लिए हो सकता है, आइडियल हो सकता है? दीन के लिए चीर दिया गया उनको, सहाबा को। आज हमने दीन के लिए आज एक खरोच तक लेना नहीं चाहते, है ना? लेकिन फिर भी उनके बेटे पीछे नहीं हटे। मेरी माँ मेरे सामने शहीद हो गई, मुझे दीन पे अमल नहीं करना, बोले यासर रज़ी अल्लाह अन्हा, बोले डट के रहे, मायूस नहीं रहे, डट के रहे अल्लाह के लिए। मुसीबत आए, बीमारी आई, परेशानियाँ आई, अल्लाह के ज़ात पे यकीन रखो, अल्लाह को ज़ाहिर नहीं करेगा आपको। मोमिन, एक कामयाब इंसान कभी मायूस नहीं होता। आखिरी चीज़, 8वीं चीज़, एक कामयाब इंसान, एक मोमिन का विज़न, उसकी सोच, उसका इरादा बहुत बुलंद होगा। बोलो 8वीं चीज़ क्या है? एक मोमिन का सोच, एक इरादा, उसका मोमिन, उसके ख्यालात, उसके इरादे बहुत बुलंद होते हैं।